ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤੇ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਓੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵਾ ਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ।
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸਵਸਤਿ ਆਥੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖ ਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਜ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਦਾ ਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਸਦਮਾਰ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇਹ। ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼,
ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਤੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੋਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਮਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्याण पालक होहे ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अध्याय 46 वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निर्जना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर गिरि श्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा देवी दुर्गा और भगवान शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने अनेक वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले देवी पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठ गई। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर मैं और ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, इंद्र आदि सब देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुला लाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर की ओर चले। हिमाचल के घर भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक श्री शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जा रहा था। तब वे महेश्वर
चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं श्री विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटाह, अनाक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र दीन बंधु भगवान श्री शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने भगवान शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का आदर सत्कार किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पग अर्घ देकर हिमालय ने अपने भवन के भीतर उनको बुलाया और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, श्री विष्णु को और श्री शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरांद्रियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर जी के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतवेदी में वहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या देवी के ऊपर विराजमान की। वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याहावचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी देवी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया। उनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से श्री शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी और आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। अध्याय 47 भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा भगवान शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर महर्षि नारद जी के द्वारा उत्तर देना, हिमालय का कन्यादान करके भगवान शिव को दहेज देना तथा देवी शिवा का अभिषेक। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पग आदि द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर भगवान शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं।
हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। महर्षि नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। महर्षि नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बाहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे हैं। निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परातत्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। सतगुर आयो शरण तुम्हारे, सतगुर आयो शरण तुम्हारे, सतगुर आयो शरण तुम्हारे, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। मिले सुख नाम हर सोबा, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लागे हमारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारे, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। मिले सुख नाम हर सोबा, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लागे हमारे। सतगुर आयो शरण तुम्हारे, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। अवर न सूझे दूजी ठाहर, अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, हार पर्यो तो द्वारी, हार पर्यो तो द्वारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारे, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। मिले सुख नाम हर सोबा, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लागे हमारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारे,
ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ, ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ, ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਨਾ, 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 ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ, ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ, ਪਉਣਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ। ਪੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, 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 ਤਿਸ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਤਿਸ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਤਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਤਿਸ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਤਿਸ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, धन गुरु नानक। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। पवना व्यापै तेरी सरना,
बड़ी आसान पंक्तियां हैं, सिंपल पंक्तियां हैं। पावना व्यापे तेरी शरण, जो तुझ पावे सोई करना। कि जिसे तेरी शरण प्राप्त हो जाए उसे किसी का डर नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे तेरी शरण की प्राप्ति मिल जाए उसे डर नहीं रहता। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, शरण कैसे मिले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बातों से शरण नहीं मिलती, गली जोग ना होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरण बातों से नहीं मिलती। ये जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पातशाही शब्द में समझा रहे हैं पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कि अगर उसकी शरण चाहिए तो क्या कर? कहते सारा संसार किसी न किसी डर में जी रहा है। हर एक को किसी का डर है। डर डर के मर मर के भरमों में सब जी रहे हैं। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कोई है जो बिना डर के जीता है। हाँ, कौन? जिसे तेरी शरण प्राप्त है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो कौन है? शरण की प्राप्ति कैसे हो? अच्छा समझा रहे हैं। भय में रचियो सब संसारा। संसार में हर कोई डर के जी रहा है, पर तिस भव नाही जिस नाम आधारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने नाम को अपना आधार बना लिया। परसों भी इसी बात पर विचार हुई थी। हर नाम का ओला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे नाम का आसरा मिल गया, नाम का ओला जिसने ले लिया, उसे किसी का डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर भी साध संगत जी दो प्रकार का होता है, एक संसारी डर, एक निर्मल भाव। दोनों में बहुत अंतर है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है, अगर इसे लेकर दास बैठे तो। निर्मल भाव, वो भी भाव है पर निर्मल भाव है। पिता से बच्चा डरता है, बड़ा होने के बाद भी डरता है, ये रिस्पेक्ट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे कहते हैं निर्मल भाव। महापुरुषों की संगत में पहलवान भी आ जाए वो भी महापुरुषों से डरता है। क्यों? ये निर्मल भाव है। यहाँ पर शारीरिक ताकत की बात नहीं है, यहाँ पर मानसिक ताकत की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्मल भाव, दूसरों के लिए डरना, निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार सेवा कर रहा है गुरुद्वारे में, पर डर कर सेवा करे। डर क्या है? निर्मल भाव, कि कोई मेरी वजह से टूट ना जाए। निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डर होना जरूरी है कि कोई गलती ना हो जाए जिससे संगत टूट जाए। निर्मल भाव ये डर की गिनती में नहीं आता, ये प्रेम की गिनती में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक डर है जो कभी नहीं होना चाहिए, और वो डर केवल नाम मिटा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए सिवाय उस एक के। मेरा रुस्से न कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डर हो, और वो डर ना हो कि लोग क्या कहेंगे। वो डर ना हो कि वो मुझे कुछ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये डर खत्म करने का एक ही तरीका है, बानी कह रही है। भय में रचे सब संसारा, भय में रचे सब संसारा, तिस भावना जिस नाम आधारा, तिस पाना ही जिस
नाम आधारा इस पानाही जिस नाम आधारा हो ना व्यापे तेरी सरना ना व्यापे तेरी शरणा हो ना व्यापे तेरी सरना ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना 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 होना व्यापे तेरी सरना ना व्यापे तेरी सरना सोग हरक में है आवण जाना सोग हरख में आवण जाना सोग हरक में है आवण जाना सोग हरख में आवण जाना तिन सुख पाया जो प्रभ पाना तिन सुख पाया जो प्रभ पाना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सोग हरख में आवण जाना। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस सृष्टि में इस संसार में सुख दुख झेलते हुए इंसान का जन्म होता है और मर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जन्म से लेके मरने तक दुख सुख भोगता रहता है, पर एक है कोई विरले जन नानक उत्तम कार्य विरले के ही के, जिन्होंने अपनी सुरत को शब्द से जोड़ दिया है, जिन्होंने गुरु के भाने को मान लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जो गुरुमुख है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, वो परमानेंट सुख को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक
तिन सुख पाया, आत्मिक सुख की प्राप्ति केवल उन्हें होती है जो उसके भाणे को मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ऊंची अवस्था है भाणा मानना। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज तती तवी पर बैठे भाणा मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जीवन में छोटा सा दुख आ जाए, कंप्लेन लेकर बैठ जाते हैं गुरु के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए, अरदास गुरु को ही करनी है, हमारे पास और कोई है नहीं सिवाय गुरु के। और उसका भी एक ढंग होता है, एक होता है कंप्लेन, एक होता है फरियाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पातशाह, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है मुझसे भूल हुई है, बख्श दे। एक होता है मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो अमृत ले उठता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन दोनों में बहुत अंतर है। ये तो हिसाब किताब हो गया कि मैं अमृत ले उठता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और अगर हिसाब किताब में पड़ गए, लेख है कतई न छूटिए, खिन खिन पूलनहार। हम तो हर सेकंड भूल करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं कितने पाप किए हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां गिनती नहीं, अगर गिनती में पड़ गए, हिसाब में पड़ गए तो छूट नहीं पाएंगे। कोई नहीं छूट सकता अगर गिनती में पड़ जाए तो, केवल बख्शा दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा, मुझे पता है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कितने जन्मों के मेरे बुरे कर्म हैं। तू तो काट रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कभी नहीं हो सकता कि नाम जपा हुआ व्यर्थ चला जाए, हो ही नहीं सकता। एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। पर हम डोरी गुरु पर छोड़ते नहीं, अपनी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना हो, नहीं हो सकता। हमारे कर्मों का हमें नहीं पता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लाखों लोग हैं जो ऑडियोज बना बना कर भेजते हैं कि हमारे पास ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। मतलब गिनती नहीं है, मैं सुन नहीं पाता इतनी ऑडियोज। और सुनता हूं तो आंखों में आंसू आ जाए, तो शुक्राना निकलता है गुरु के चरणों में कि पातशाह तूने जोड़ा, अमृत वेले से लोगों के दुख दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूछो उनसे जिन्होंने पाया है अमृत वेले उठकर, पर नाम का आसरा पकड़ा है जिन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिन सुख पाया जो प्रभु भाणा, जो उसके भाणे में चल पड़ा। कि गुरु जो कर रहा है उसके पीछे कोई कारण है। जिसके मन में ये विचार आ जाए दुख आते हुए भी, वो परमानेंट सुख को पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि फिर वो कंप्लेन नहीं करता, फिर वो क्या कहता है, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे
सागर महाव्यापे माया अगन सागर महाव्यापे माया अगन सागर महाव्यापे माया महाव्यापे माया से शीतल जिन सतगुर पाया जिन सतगुर पाया सतगुर पाया से शीतल से शीतल जिन सतगुर पाया जिन सतगुर पाया अगन सागर महाव्यापे माया अगन सागर महाव्यापे माया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक अगन सागर महाव्यापे माया। अग्नि का सागर किसे कहा है? तृष्णा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक तृष्णा की भूख के समंदर में डूबा हुआ है इंसान। तृष्णा और की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। श्री जपजी साहब जी की वाणी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिसे भूख लग जाए तृष्णा की, उसकी भूख नहीं उतर सकती। चाहे सारी पुरियां, जितनी भी पुरियां हैं, जितनी सृष्टि में जितना धन है, उसके आगे लाके रख दो, तब भी वो कहेगा और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक एक पृथ्वी की बात नहीं की, जितने भी पुरियां हैं, सबका धन लाके, सबके पदार्थ लाके उसके आगे रख दो, इंसान कहेगा और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक इसे अगन का सागर कहा है। अगन सागर महाव्यापे माया। पर कोई है से शीतल जिन सतगुर पाया। उनके मन की भूख मिट गई, उनकी तृष्णा खत्म हो गई, जिसने गुरु नानक को ही पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बाबा नंद सिंह जी से गुरु नानक पातशाह ने कहा था ना, मांग कुछ मांग ले। बाबा नंद सिंह जी कहते मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हमारी खुशी के लिए मांग ले, हमारा मन करता है तो कुछ मांग। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कि अगर आपका हुक्म है तो मैं यही मांगता हूँ कि मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, एक तो कहता है मांगना आता नहीं और सब कुछ मांग लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु नानक को ही मांग लिया, बचा ही क्या? सृष्टि का मालिक ही जिसका हो गया, जिसने किसी अनाथ को अपना बना लिया, गोद ले लिया, उसकी सारी दौलत का मालिक कौन? वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक से शीतल जिन सतगुर पाया। केवल उनके मन शीतल हैं, शांत हैं, जिनको प्यास है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिसे उसे पाने की प्यास है या जो उसे पा चुका है, उनके मन शीतल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक असल में हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर शीतल की बात करें तो जो गुरु के प्यास में जो तड़प है,
जो मन जलता है उसमें एक रस है, उसमें एक खुशी है, उसमें एक उस दर्द में भी आनंद है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, सुल्तान भक्ति कहा है बिरहा को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्तम भक्ति, टॉप की भक्ति सुल्तान बिरहा को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके मन में उसको पानी की प्यास जाग जाए, उनके मन शीतल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि और उन्हें और किसी चीज की भूख नहीं रह जाती। ये सब हम क्यों सुनते हैं साथ संगत जी? ताकि हमें ज्ञान तो हो, ठीक है हमारी ये अवस्था नहीं है, यहाँ तक पहुंच नहीं, पर ज्ञान हो कि पहुंचना कहाँ पर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कोर्स ज्वाइन करता है ना, तो उसे पता होता है कि ये कोर्स करके वो क्या बनना चाहता है। IAS बनना है तो उसके लिए क्या करना है, हम वो समझ रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पता तो होना चाहिए कि क्या क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ये मंजिल है हमारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगन सागर महाव्यापे माया, अगन सागर महाव्यापे माया, से शीतल जिन सतगुर पाया, 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 होना व्यापे तेरी सरना, होना व्यापे तेरी शरणा, होना व्यापे तेरी सरना, होना व्यापे तेरी शरणा। माथे जो तुर लिखिया, सो मिट न सके को। माथे जो तुर लिखिया, सो मिट न सके को। नानक जो लिखिया सो वरतदा, सो बूझे जिसनो नदर होए, सो बूझे जिसनो नदर हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी अपनी बाणी में समझाते हैं।
कि माथे जो धुर लिखिया सो मेट ना सके कोई। जो जहां पर लिख दिया गया वो नहीं मिट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो किस्मत में लिख दिया गया वो होकर ही रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक जो लिखिया सो वर्तदा, सो बूझे जिसनो नदर होए। गुरु नानक, पांचवें गुरु नानक, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक वाणी में फरमा रहे हैं कि जो लिखिया सो वर्तदा। अब हमारे कर्मों की वजह से यहाँ पर लिख दिया गया है कि कैंसर होगा तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हमारी किस्मत में लिख दिया गया कि सारा जीवन गरीबी में जीना है तो गरीबी में जीना है। जो दुख लिख दिया गया, जो सुख लिख दिया गया वो होना है। आगे की पंक्ति बड़ी कीमती है, सो बूझे जिसनो नदर होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इस पंक्तियों में, इन दो पंक्तियों में एक बुझारत छिपी है। बुझारत, बुझारत उसे कहते रिडल। अब उसे बूझना है। कौन बूझता है उसे? जिसके ऊपर गुरु नानक की नजर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बूझने वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे कहते हैं आदि रोग। 3 प्रकार के रोग होते हैं, आदि, व्याध, उपाध। आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 प्रकार के रोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदि रोग जो लिखा है वो होकर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदि पहले से लिख दिया गया है कि कैंसर होगा, इसे ऐसी बीमारी होगी, ये गरीबी में रहेगा, या जो कुछ भी है ये सजा मिलेगी इसे। पर बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर जो लिखा है, अब बात हो रही है बूझने की, यहाँ पर बूझना क्या है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, अगर जो लिखा है वो होना है तो फिर गुरु के शरण में आने का लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर लिख दिया गया कि इसके घर में औलाद नहीं होनी और अब औलाद मिलनी नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो फिर इसके दर पर आने का लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके चरणों में आकर अमृत वेले क्यों बैठे हैं? भाई बख्श दे, लेख बदल दे। कहते हैं ना लिख दे, अच्छा वहां नहीं लिखा है, यहाँ लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि लिखने वाला अगर ये है, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से अगर सजा लिखी है तो इसी ने लिखी है ना, विधि के विधान ने लिखी है ना। और विधाता कौन है? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने वहां लिखा है मिटाकर यहाँ कुछ नया भी लिख सकता है, उसके हाथ में ताकत है। गुरु नानक मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जो लिखा है वही होना है तो गुरु नानक की शरण में क्यों आके बैठे हैं? लेख 3 लोगों के नहीं बदलते, बस हम उनकी गिनती में ना आ जाए, इससे समझ जाए। ये 3 लोगों के लेख कभी नहीं मिटते, चाहे कुछ भी कर लें। और अगर इन तीनों की गिनती में ना आए तो लेख बदलने ही बदलने हैं 100%। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी वचन किया करते थे, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी। वो वचन किया करते थे, लेख 3 लोगों के नहीं मिटते। पहला मनमुख। अगर मनमुख है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, अपने तर्क पेश करता है। गुरु कहता है नॉनवेज नहीं खाना, मांस नहीं खाना, वो अपने तर्क पेश करता है कि नहीं खाएंगे तो सारे दुनिया में बकरे बकरे हो जाएंगे, मुर्गियां मुर्गियां हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने तर्क है उसके। कभी गुरुओं पे दोष लगा देता है कि गुरुओं ने खाए थे। मनमुख। लेख नहीं बदलते, चाहे कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नाम भी जप लेगा, सेवा भी कर लेगा, पर अगर मनमुख है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, अपने तर्कों पे चलता है,
तो जो नाम जपेगा, जो सेवा करेगा, उसका फल मिलेगा अलग, पर कर्म फिर भोगने पड़ेंगे, वो बदलेंगे नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। दूसरा है चौफेरा, जो हर दर पे भटकता हो, हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे एक पे विश्वास नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, यहाँ से बात नहीं बनी चलो वहां चलते हैं, वहां से बात नहीं बनी चलो वहां चलते हैं। चौफेरे के लेख नहीं बदलते, जिसे एक पर विश्वास नहीं आया, तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सर सबके आगे झुकाओ श्रद्धा से, पर मन में बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जब एक ब्याहता स्त्री घर में आती है, उसे सत्कार देवर का भी करना है, जेठ का भी करना है, माता पिता का भी करना है, सास ससुर का सबका करना है, पर जो जगह उसके मन में अपने पति के लिए है वो किसी के लिए नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। पर अगर वो उन सबका सत्कार नहीं करेगी तो अपने पति की नजरों में भी गिर जाएगी। इसीलिए मन एक को देना है, पर सत्कार सबका करना है। अगर दूसरों का सत्कार नहीं किया तो अपने ही गुरु के नजरों में गिर जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख के चौफेरे के और तीसरे अहंकार ही के लेख नहीं बदलते। अहंकार क्या? मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी सेवा की, जो अभी बात निकली थी। जो इस प्रकार से अरदास करते हैं, मन में अहंकार लेकर नाम जप रहे हैं, तीनों के लेख नहीं बदलते। लेख किसके बदलते हैं? गुरुमुख के। दुख आ गया है, वो गुरु के आगे खड़ा हो जाता है, पातशाह न जाने मैंने कितने अपराध किए, कितने पाप किए, कितने कर्मों के पाप हैं, कितने जन्मों के पाप हैं, बख्श दे, बख्श दे। जो बख्शाने के लिए खड़ा हो गया, जो गुरु कहता है अमृत ले उठो तो उठता है, गुरु कहता है शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं पीता, निंदा नहीं करनी, अपने को बचाने की पूरी कोशिश करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है। गुरुमुख, गुरु को लेख बदलने पड़ते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं हैं, समय नहीं है इस वक्त बताने का। आदि रोग, कर्म रोग जिसे कहते हैं, उन्हीं के बदलते हैं जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपने मन के रास्ते पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हम कभी मनमुख के ना बने, चौफेरे ना बने। तरस करे गुरु, अहंकार से खुद बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदि रोग इसे कहते हैं। दूसरा रोग व्याध रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। व्याध रोग किसे कहते हैं? अचानक कोई दुख आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कहीं से गिर पड़ना, अचानक किसी चीज का हमला हो जाना जो सोचा भी नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, अचानक घर में बड़ा दुख आ जाना, इसे कहते हैं व्याधि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे बचने का क्या तरीका है? वाणी में एक सवाल का जवाब है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। है दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। दीवान लग गए आर ब्रह्म शरणा, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाए। व्याधि रोग, व्याधि रोग उसकी बात हो रही है। उसकी काट क्या है? ये जो अचानक दुख आ जाते हैं, इससे बचने का तरीका इस शब्द में बड़ी डिटेल में बताया है। ध्यान से श्रवण कीजिए। तातीवान लग गए पार ब्रह्म सरना, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाए। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाए, राम नाम औखद दिया एका लिवला।
हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात हो रही व्याधि रोग। व्याधि क्या है? व्याधि दुख क्या है? अचानक आने वाला दुख। इससे बचने का तरीका क्या है? इसका इलाज क्या है? ताती वाव न लग गई, तुझे गर्म हवा का झोंका भी नहीं छू पाएगा अगर तूने उसकी शरण प्राप्त कर ली। पार ब्रह्म शरणाई। अभी शब्द भी यही चल रहा है, भव न व्यापै तेरी शरणा। पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाए। एक घेरा बन जाता है नाम की ताकत का, कोई दुख उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। होता कैसे है? बड़ी डिटेल में समझाया। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। अब सतगुरु मिल गया, हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण प्राप्त हो गई। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उपदेश दिया, भाई नाम जप। बानी क्या कहती है हर शब्द में? नाम जप। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। कोई संत महापुरुष मिला दिया जिसकी संगत में नाम जपने का चाव पैदा हो गया, बनत बन गई। बनत बना दी गुरु ने, महापुरुषों से भेंट करा दी। महापुरुषों से भेंट होने के बाद क्या हो गया? तेरे भीतर नाम चल पड़ा। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। गुरु ने बनत क्या बनाई? संतों महापुरुषों की संगत बख्श दी, जिन्होंने तुझे अपनी संगत में रख के नाम से जोड़ दिया। अब नाम ने क्या किया? सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औषध दिया। राम नाम की ऐसी दवाई दी, एक का लिव लाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तेरी लिव लग गई गुरु के चरणों से। देखना कितने सिस्टमेटिक शब्द में समझाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। संतों महापुरुषों ने क्या किया? तेरे अंदर राम नाम का जाप शुरू करवा दिया, तेरी लिव जुड़ गई नाम से। अब लिव जुड़ने से क्या होगा? राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याध मिटाई। ब्याध रोग की बात हो रही है। राख लिए तिन रखन हर, सब ब्याध मिटाई। आने वाले दुख आने से पहले ही खत्म करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक का लिव लाई। अब ये तो जिन्हें इस बात का ज्ञान है वो इस बात को समझ सकते हैं। जब लिव जुड़ी होती है ना, आप सफर कर रहे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी, अगर आपकी सुरत जुड़े हुई है नाम से, या कहीं भी बैठे हो, कई बार वो समझ सकते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि भीतर से आवाज आती है। गुरु कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर, यहां से नहीं वहां से जा, ऐसे नहीं ऐसे कर। अंदर से आवाज आती है उनके, क्योंकि लिव जुड़ गई हुई है, बात हो रही है, लाइन जुड़ गई है टेलीफोन पर, अब बात हो रही है, भीतर से आवाज आती है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आने वाली मुश्किलों से गुरु बचा देता है समझाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औषध दिया, एक का लिव लाई। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय। अगर नाम नाम से लिव जुड़ गई, तेरे दुख आने से पहले ही कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन। हर इंसान के जीवन में 100 बार मौत लिखी होती है। एक मौत तो अटल है जो होनी ही है, 99 टाइम अन्यायी मौत लिखी होती है। केवल वो उससे बचता है जिसे शरण की प्राप्ति है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाकी सब नहीं बच पाते। ये जो सबने वाणी की ताकत को अब देखा है अपनी आंखों से, सुना तो बहुत था सबने कि 40 दिन में क्या हुआ है। सारी संगत ने श्री जपजी साहब जी की वाणी का आसरा लिया, शरण प्राप्त की ना, गुरु नानक की बात मानी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात मानी ना हमने, गुरु श्री सुखमनी साहब जी की वाणी से सब जुड़ गए। क्या हुआ? सबकी रक्षा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहो नानक कृपा भई, कृपा कर दी उसने, प्रभु भय सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 3 प्रकार के रोग, आदि, व्याधि और तीसरा उपाध। उपाध रोग क्या है? दिमाग का हिल जाना, पागल हो जाना, अपने क्रोध पे कंट्रोल न रहना, कोई पसंद ना करे पास में बिठाने के लिए, क्योंकि स्वभाव ही इतना बिगड़ गया है कि कोई पसंद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले गए, इसे कहते हैं उपाद रोग, मानसिक रोग। मानसिक रोगी होते हैं जिनके पास किसी को बैठना पसंद नहीं है। सूखा पेड़ हो उसके नीचे कोई नहीं बैठता, सूखे मन के पास कोई क्यों बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों के पास बैठने का क्यों आनंद आता है, क्या वजह है? उनके मन हरे हुए होते हैं नाम से, छांव मिलती है, शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है, मन करता है बैठे रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उपाद रोग, इसका इलाज केवल एक है, बस कोई दूसरा नहीं, केवल एक। क्या है? उठ नाम जप, 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 उठ नाम जप। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध। कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाध। कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाध। नाम जप, उठ 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 नाम जप। कितना क्लियर समझाया है। इसका इलाज एक ही है, अमृत वेले उठ नाम जप। ये जो तेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसकी वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से तेरा कोई काम नहीं बनता, ये स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते इंसान पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। पर अगर तूने अमृत वेले उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, गुरुमुख बन गया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा, ये उपाद रोग भी खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारा तुझे ना व्यापे, नानक मिटे उपाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरस किया गुरु नानक ने, हमें अमृत वेला बख्शा है। बहुत सारी संगत इस वक्त सारी दुनिया में जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो केवल आज उठे हैं, कभी कभी उठते हैं। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, कहते 40 में उठते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके चरणों में बेनती है कि मन बनाओ। 40 होता ही इसके लिए है कि आदत पड़ जाए। तरस किया गुरु ने 40 के, अब जब कल अपने आप उस वक्त नींद खुल जाएगी। संभाल लो अमृत वेला, ना आद ना व्याध ना उपाद, कोई दुख पहुंच नहीं सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी चीज का डर नहीं रहेगा। भाव ना व्यापे तेरी शरण, गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी जिसने अमृत वेला संभाल लिया। क्योंकि गुरु नानक के वचन है, जो अमृत वेला संभाल लेगा, बाबा नंद सिंह जी के वचन, गुरु नानक उसे संभाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव ना व्यापे तेरी शरण, उसकी शरण प्राप्त हो जाए। भाव ना व्यापे तेरी शरण, भाव ना व्यापे तेरी शरण, भाव ना व्यापे तेरी
शरणा जो तुझ पावे सोई करना 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 कौन आवे आपे तेरी शरणा ना मेरा पे तेरी शरणा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु वाहे 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 गुरु गुरु भोना बिया पे तेरी शरणा ना मेरा पे तेरी शरणा भोना बिया पे तेरी शरणा ना मेरा पे तेरी शरणा कबियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे इच्छा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चलन बन रहे
उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੂਸਰਾ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਰਤ ਜਗਤ ਕਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਕਤਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਜਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।